to discuss the pre-scene material. And guys, I have received various requests from the students that ma'am, we want a English version. That means you guys want a blend of Hindi and English. So now, from my background, you must be aware about that what we are going to discuss. Yes, this question is related to the pet industry. And if you guys are, pet lovers, maybe dog lover, fish lovers, someone have, fish in their homes, or if you have cats in your home or birds, so you can link it with yourself and the industry. What kind of, resources do you need for them? So always try to link with the, latest use latest information about the industry nearby your industry, or your real life example that is gonna to help you to solve the question. And guys, I love pets, but yes, somehow I am afraid of certain, pets, especially I am afraid of dogs. So but yeah, I have, my friends, I have my friends that, those friends have pets, and I visit their home, and I knew that what kind of resource they purchase for them, what kind of, essentials are required for having a dog. So I will be sharing my experience, although I don't own a dog. I will be sharing my experience, and I will, suggest you guys to link it with maybe some neighbor, or if you have a dog, you can link it with your life scenarios. So what I was saying, that I will be using both languages, Hindi as well as English, for those students who are more comfortable with Hindi. So the purpose is for this conversation is that you need to adjust yourself with the industry, adjust yourself with the question which is gonna to be tested in the main examination. So let's begin the journey. And this background is just giving you example that yeah, you have to just keep in mind these dogs, these cats, while reading, while thinking about the industry. Now, PBS. PBS provides pet veterinary services in Ireland. Ireland is our country. It is the fifth largest organization in the industry in Ireland and has been established for 32 years. So it's information about our company. We are, providing pet veterinary services in Ireland. Ireland is our country, and our organization is on the fifth position, and we are doing this particular business from last 32 years. Now, pet vet service industry Ireland. Now they are discussing about the industry in which we are operating in our country. Now, overview. Pet vet service industry provide healthcare for pets. Organization within the industry employs specialist animal doctors known as veterinarians and specialist animal nurses, vet nurses, to deliver veterinary services in the clients. Now, if you guys are not familiar with the pet doctor's word, just link with your own doctor that yes, for the purpose of healthcare, for serving us, we need doctors. And for other areas, we also need nurses to assist them. And we need, persons to provide us delivery related services. So this is all about the overview of the medical or medication related to these pets. Pets are domesticated or tempered animals which are kept primarily as a source of companionship or pleasure. These include cats, dogs, as well as other small members, small birds, small reptiles, and some other types of rodents. So, see, guys, the background is gonna to give you idea that pet doesn't mean only dogs, but yes, other things also. So, guys, see, I love them, but somehow I am afraid of them because I remember my journey that when I was a kid, dog used to he attacked me, and that memory is always hitting my mind, and I'm afraid that maybe these dogs are going to bite me. So that's why I'm scared of them. But yeah, I love these creatures, and I've tried to feed them from, so, by keeping them myself away.
So yes, the persons who have dogs, see, our family members have dogs, and I can not immediate family, but yes, my relatives have dog. So I can, imagine the question by linking the real life scenario, that yes, like these dogs, मतलब जो ये dogs हैं जिसके पास होते हैं, they are primarily as a source of companionship and pleasure. And if you are having a dog once, उसके बाद you can't live with them. Their daily routine, their walk, their food is a part of your life, and you love them just like your own kid. And इनमें ये सारे cats, other animals, ये सब include होता है. So next is next is about these study techniques. So veterinarians, that means the doctors, study veterinary medicine at university for 5 years, taking demanding exams and undergo rigorous on the job training. Just imagine, like normal doctors, they do MBBS or BDS, these undergo the same thing. They have to, check these dogs, and they have to go on the job training, just like we people, we go for training under our articleship, or work under the accountancy firms or taxation firms. It's their method of, learning. Now, service provided by vet clinics for pet owners, client, and their pets patient include. See, in this given case, what problems arise? Normally, what happens when we are a patient, we have to show ourselves, for we are the patient and we are the clients. But in this industry, pets are the patient who can't tell what their problem is, but the clients are the pet owners. They are gonna to take these pets to these doctors to get their treatment done. Now, what kind of services are being provided to these pets in the industry? First one is about annual vaccination. Just consider like normal vaccination, right? So first one is about annual vaccination. Next is about the diagnostics of health condition and diseases, medical treatment once a condition, disease, or injury has been diagnosed, prescription of medication. A prescription is an authorization of veterinarian for the issue of certain medication, sale of both prescription and non-prescription medication, routine surgical operation, referral for serious medical issue, complex surgery, or specialist services, guide and advise on pet care, sale of specialist pet food which address specific health and age related issues, sale of other product accessories such as bedding, cage and toys for pets. Now link it with real life. Okay, ये जो पेट्स हैं इनको वैक्सीनेशन भी लगानी पड़ती है, जस्ट लाइक अगर हम अपने डॉग्स की एग्जांपल है, इनको वैक्सीन नहीं लगाएं तो ये अगर किसी को गलती से बाइट कर ले, तो उस पर्सन जिसको ये बाइट कर लेते हैं उसको डिजीज हो जाती है. सो यस, इनका हेल्थ कंडीशंस वगैरह के लिए एनुअल डायग्नोस की जरूरत है. मेडिकल कंडीशंस वगैरह जब अगर पता चल गई तो एनुअल ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए वो हो गया. मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देना, और ये प्रिस्क्रिप्शन कौन ऑथराइज करता है? ये वेटेरियन करते हैं, जो कि मेडिकेशन के बारे में इशू करते हैं कि ओके दे नीड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड दिस काइंड ऑफ मेडिसिन. नेक्स्ट, उसके अलावा चाहे प्रिस्क्रिप्शन वाली चाहे नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली, जैसे सपोज करो हल्का सा फीवर है, तो वी न्यू दैट these little creatures also need certain kind of medication. We knew that from the routine trial. If I am having a pet from last 3 years, and I know that with this medicine these pets get recovery. So on a simple note basis, I won't just buy these, or I won't opt for going to doctor. I will buy just medication from normal chemist, like they have separate chemist. So again, रूटीन सर्जिकल ऑपरेशंस और रेफरल फॉर सीरियस मेडिकल इश्यू. सपोज करो कि इनका भी कोई बार एक्सीडेंट हो जाता है, देखते हैं हम रोड पे एकदम से कार आई है, इनको चोट लग गई, तो अगेन इनके लिए भी ऐसी सर्जरी करने के लिए रूटीन सर्जरी एंड कुछ स्पेसिफिक सर्जरी जो है उसकी भी सर्विसेज होती हैं. एंड ये पेट केयर की गाइडेंस भी, बिकॉज
those person who owns a pet may be free of you. आपको पता होगा कि यस इनका फूड, इनका बाथिंग, इनका वॉक एंड इनका पूरा डेली शेड्यूल और उनको कैसे केयर करना है, इनका हाइजीन, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है. इन आवर कंट्री, स्पेशली इन इंडिया और इन एशियन कंट्रीज, दिस इज नॉट सो फेमस, but in developed nation, if you are having a pet, you are having a responsibility for these creatures. So उसके लिए गाइडेंस दी जाती है कि आप क्या ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लोगे, उसके बाद ही देखो पेट इशू किए जाते हैं. देन उसके बाद सेल ऑफ स्पेशलिस्ट पेट फूड. अब देखो इनका फूड भी अलग होता है, वो फूड भी जो है मार्केट में जो है मिलता है. एंड सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. अब देखो इनका पेट्स हैं तो आपने देखा होगा डॉग्स के टॉयज भी होते हैं. आपने कभी अगर कार्टून देखे होंगे टॉम एंड जेरी वाले, तो वहां पर एक डॉग डॉग होता था प्लूटो, उसका एक अलग से टॉय होता था. सो यस, इसको उससे लिंक करो कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए. उनको केज चाहिए, उनको टॉयज चाहिए, बेडिंग चाहिए. जस्ट लाइक इमेजिन दोज बेड्स फ्रॉम द कार्टून्स. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस which is being provided in the industry. So these services are usually provided via consultation with veterinarian or vet nurse. Consultation are usually booked on telephone or online. In Ireland, the average consultancy time is 15 minutes. ना अब तक जो है मुझे इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता चला है कि इसकी हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हमें डॉक्टर्स की नीड है एंड नर्सिस की नीड है, और डॉक्टर्स जो है काफी ज्यादा क्वालिफाई. ऑब्वियसली ये वेट डॉक्टर्स हैं, पेट डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर ही हैं. उनको जो है क्वालिफिकेशन अटेन करने के लिए प्रोफेशनल्स हैं, तो थोड़ा सा जो है सफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोफेशनल्स वो बनते हैं. उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी है. Now, next is about the market structure. Traditionally, vet organization were small business run by veterans or group of veterans. Each business includes one or two clients. Growth was driven slowly or organically by obtaining the new clients. अभी तक हमारे क्या है, जो वेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन थे, जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो थे. अब छोटे छोटे लेवल पे हर एक बिजनेस के क्या क्या थे, एक या दो क्लाइंट्स थे, और ग्रोथ जो थी स्लो थी, ऑर्गेनिक ग्रोथ थी. ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कि विदाउट एक्विजिशन, विदाउट मर्जर, जस्ट अपना ही स्लो पेस पे कॉन्टिन्यूसली द रिसोर्सेज व्हिच वी हैव उसी से ही करना. Next is the number of pets in Ireland increased. The size of many business grew. Larger organizations began acquiring smaller one due to potential cost saving from economics of scale. It is anticipated that this acquisition was activity with continuity over the next 5 years. अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, अब देखते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस. हमने एसबीएल में ये टॉपिक भी पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री जो है अट्रैक्टिव होती जाती है, न्यू लोग भी उसी इंडस्ट्री में एंटर करना शुरू कर जाते हैं. एंड फिर अब क्या होगा कि लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना शुरू किया, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को अक्वायर करना शुरू कर दिया. अब अक्वायर किया तो कम बिजनेस रहने लगे, बड़े वाले लेवल के रहने लगे. एंड इससे क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होगी, ज्यादा लेवल पे काम करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के लेवल पे पहुंच जाएंगे. एंड अभी हमें ये एंटीसिपेशन है कि ये जो प्रोसेस है एक्विजिशन वाला, ये जो है आने वाले 5 years तक भी ऐसे चलेगा. Now, most recent multinational organizations, particularly those which have pet food divisions, have been attracted by the industry profit and have been acquiring vet business. An added attraction of industry is that it provides another route to market for their pet food products. These multinational organizations are expected to continue their expansion through acquisition activities. So देखो अब हमने देखा है कि रिसेंटली क्या हो रहा है, कि जो ये पेट फूड डिवीजन है, जिनके पास पेट फूड डिवीजन है वो भी इस इंडस्ट्री से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है. एंड हैव बीन एक्वायरिंग वेट बिजनेस. और वो क्या कर रहे हैं, वेट वाले बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लगेगी सब लोग उसी इंडस्ट्री में जाएंगे. जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एसीसी इंडस्ट्री, राइट? सो नाउ इट सीम्स टू बी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अर्लियर पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट एसीसी. But now the industry attractiveness, because ACCs are having good salary package and good recognition, तो other field वाले भी ACC में आ रहे हैं.
तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो ये फूड डिवीजन वाले हैं, वो भी पेट फूड वाले, वो भी इस इंडस्ट्री में आने लगे हैं। एंड अब जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें भी लग रहा है कि वो भी एक्विजिशन वाले वे से इस वाले बिजनेस में एंटर होते रहेंगे। अब currently three multinational organization control 52% of the Ireland pet vet service industry. They operate clinics on a nationwide basis. There are also three large independent vet organization which own and operate clinic on a regional basis. Hundred of small business usually employing less than 10 people operate locally. ठीक, तो अभी तक इन्होंने क्या बोला है कि तीन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 52% जो है वेब सर्विस इंडस्ट्री को जो है आज की डेट में कंट्रोल कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये तीन किन के बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? ग्लोस, बैलस्टोन ग्रुप और ह्यूड ग्रुप। सो ये जो है इनका क्या बिजनेस मॉडल है, नेशनल लेवल पे इन्होंने बिजनेस कर रहे हैं। एंड ये जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अलग से क्लिनिक है और ये रीजनल लेवल पे काम करता है। और बाकी सब क्या है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो क्या है उनके ऐसे हैं कि ये एक बिजनेस ओनर है, उसके 10 से कम ही मतलब जो है स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सब हैं। एंड दे आर ऑपरेटिंग लोकली नियर बाय देयर एरिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, द स्टेट लेवल, उससे ज्यादा नहीं। So the market share by revenue of major players in the Ireland pet vet industry, service industry on 31st March is this. Names ये जो हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ये सब हो गए। अब यहाँ पर हम कौन है, 6% शेयर, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट पे, राइट? सो इसको लिंक करते जाना, हमारे पास 6% शेयर है। एंड on 31st March, the Ireland pet vet service industry employed almost 36,000 people and generate a revenue of 2.5 billion. ठीक है, हमने जो है इतने लोगों को एम्प्लॉय किया एंड हमारी इस इंडस्ट्री का, इट्स नॉट अबाउट आवर कंपनी, इट्स अबाउट इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। अब जब कभी भी ये मार्केट शेयर ऐसा कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाए, मे बी वी हैव टू कैलकुलेट आवर शेयर, कुछ रेशियो उसके रिगार्डिंग में। बट अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन लग रही है, बाकी वी विल बी एनालाइजिंग फर्दर, there will be application of certain famous models and I expect reply from you guys कि अभी तक कौन कौन से मॉडल्स आपको लग रहे हैं। आफ्टर रीडिंग 2-3 मोर पेजेस आई विल बी डिस्कसिंग कलेक्टिवली जो मेरा ओपिनियन है, एंड देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 5-6 पेजेस का फिर से हम करेंगे। बट make sure that we are not just dependent upon our analysis. The purpose of this pre-scene is just to make you guys familiar with the exam question, exam condition, that this is our industry. You can't cram. I am not taking any responsibility, even if I am sure about that. But make sure that ACCA knows better than us, you and me, right? So they knew that what kind of question they need to test it. Just take the recent example of previous pre-scene, whatever analysis was done by any tutor, they have find out some different sort of question, maybe 4 to 5% was from the analyst, but the main purpose was just to make you guys familiar and कि कौन सी situation कहाँ पे बन सकती है। Now, next is about industry outlook in Ireland. First one is about revenue. Average annual growth in revenue in pet vet service over the last 5 years have been 3.5%, but growth level of 6.8% are expected for the next 5 years. Level of pet owners have increased for a decade and are expected to increase at even faster rate over the next 5 years, thereby increasingly demand for service. In addition, advance in pet nutrition, diagnosis, treatment and care are leading to longer pet lifespans. So, अगर मैं अभी की रेवेन्यू की रिगार्डिंग भी बात करूं तो एनुअल जो है ये लास्ट 5 साल में कितना था, 3.5% था। बट अब ये ग्रोथ कितनी हो चुकी है, 6.8% हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल के नियर बाय हो गई है एक्सपेक्टेशंस में। एंड जो उनका पेट ऑनर्स थे पहले कम थे, अब जो है बढ़ गए हैं एंड और ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि और ज्यादा फास्टर रेट पे आने वाले 5 सालों में बढ़ेंगे। एंड अगर ऑनर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सर्विस भी बढ़ेगी।
एंड इसके अलावा जो ये पेट न्यूट्रिशन, ये डायग्नोस्टिक, इन सब ट्रीटमेंट के होने के कारण जहां कोई पेट सपोज 5 साल जी रहा था, अब वही पेट 8 इयर्स 10 इयर्स उसका लाइफ स्पैन हो गया है। सो दैट इज लीडिंग टू लॉन्ग पेट्स लाइफ स्पैन, उनकी एज बढ़ गई है। Now, revenue growth is expected from pet healthcare plans, which are increasingly in popularity. These spread the cost of treatment pets may need over several months, making complex treatment more affordable. So, अब देखो रेवेन्यू जो है हमें लग रहा है कहाँ से इंक्रीज होगा, ये हेल्थ केयर प्लान से होगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। सो इससे क्या हो गया, दी स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पेट्स मे नीड ओवर सेवरल मंथ्स। अब इसके उसकी कॉस्ट जो है वो आगे कुछ सालों में, मतलब कुछ मंथ्स में वो डिवाइड हो जाएगी। एंड यस, उसके कारण जो है वो कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी उसको कर पाएंगे। Now, changing attitude to pet is also having a positive impact on revenue. Clients are generally willing to spend increasingly amount of money taking care of their pets. Most of the pet owners consider the good health of pets to be necessary and use the service of veterinarians regardless of their disposable income. See, normally what happens, if I am not earning that level of income, how I can feed someone else? But now, people in this particular industry, people's concern regarding these pets have changed. Their opinion about them has changed. They are thinking positive about them. Suppose they are thinking them like this, their own kids. Now, just taking the example of our parents, when we are hungry and they have limited resources, they feed us. They try to protect us. Now, in the same industry also, कि ये जो pet owners हैं वो उनकी pets की health को एक importance दे रहे हैं, because nowadays people are educated also. So they knew that कि yes, उनकी health को, उनकी hygiene को, उनकी safety के concern के लिए serious रहना है। सो इसलिए उसके कारण भी क्या है कि वो सर्विस जो है अब बढ़ गई है एंड अगेन डिमांड बढ़ चुकी है। सो इस सब से मुझे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का दिख रहा है। सो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आपको पता है कौन से मॉडल लग सकते हैं, आगे चलते हैं हम। So cost, staff cost including training comprise the biggest proportion of the cost incurred by pet vet organization. Purchase include medical supplies such as medication, bandage, syringe, as well as product purchase for resale, pet food and accessories. Other costs include premise administration, health, safety, for example, in relation to storage of medication and marketing. So now they have discussed about the cost, कि जो देखो स्टाफ कॉस्ट है, ऑब्वियसली जो चाहे नर्स हैं चाहे ये पेट के डॉक्टर्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। क्यों? बिकॉज दीज आर द एजुकेटेड पर्सन। हम देखते हैं नॉर्मल डॉक्टर्स की भी सैलरी कितनी होती है। सो यस, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, मटेरियल। और मटेरियल में अगर मैं बात करूं, दीज फैक्टर्स जैसे कि बैंडेज हो गए एंड मेडिसिन हो गए, सिरिंज, ये सब असेसरीज जो कि एक डॉक्टर को चाहिए उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द क्लाइंट्स, which historically pets have tended to be owned by those over the age of 35. 60% of new owners in Ireland in last 5 years are aged to 16 to 34. पहले ये पेट्स कौन रखते थे? जिनकी एज क्या थी, ज्यादा थी, 35 प्लस थे। But nowadays, the person who are, around the age of 16 to 34, they are again, owning pets. तो इससे भी क्या होगा, ज्यादा। सी, व्हेन किड्स आर, और इनको मैं किड्स ही मानूंगी 16 वालों को। सो जब ये टीनेज एज वाले लोग जो हैं पेट्स अक्वायर करते हैं, सो दे आर जस्ट having the companionship, they just treat them just like their friends, and they spend money on their accessories, इन सब essential के ऊपर भी वो spend करना चाहेंगे। So next is client choose clinics which they can travel to easily, so that they can get there quickly in an emergency, and so that they can minimize the transportation time for their pets. Clients are increasingly looking for convenient consultation times in evenings and at the weekends, meaning that the pet vet organization are under pressure to extend the opening hours. See, नाउ दे आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट। अब देखो रिक्वायरमेंट वो लिंक ही है। क्लाइंट्स कौन है? 16 to 34 वाले ज्यादातर अब के टाइम स्पैन में।
अब ये 16 to 34 वाले कौन से होते हैं, टीनेज वाले या वर्किंग पीपल? अब ये लोग अगर वर्किंग है, तो वर्किंग है या स्कूल गोइंग है, तो दे विल प्रेफर द टाइम आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स, राइट? इसीलिए इनकी प्रेफरेंस क्या है, वर्किंग आवर के बाद वाली है। एंड वो क्या देख रहे हैं कि यस कि नियर बाय कोई हो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में हमें क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी हमने ट्रीटमेंट लेना, हमें दूर नहीं जाना है, हमें पास में रहना है, सो दैट कि इमरजेंसी की सिचुएशन में इमिडिएटली हमें सर्विस जो है हमारी मिल जाए। अब क्लाइंट एक तो, और दूसरा हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो भी ये सर्विस मिले वो कैसे मिले, हमारे कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली मिले। कन्वीनियंट टाइम क्या है, या तो वीकडेज, या दूसरा मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम क्या है कि आफ्टर आफ्टर माय ऑफिशियल आवर्स, जैसे कि इवनिंग टाइम में, सो दैट आई डोंट नीड टू मिस आउट माय ऑफिस और मिस आउट माय कॉलेज। Now, many clients benchmark consultation fees charged by the organization in the same area. In order to keep fees low, many vet organizations mark up medication prices rather than increasing the consultation fees. Now, see, it's not about India only, but yes, जब हमें कोई भी जो है सस्ते में मिल जाता है, when we get certain surveys or goods at cheaper price, so we will prioritize the सस्ते वाला price ना, rather than going for the महंगे वाला price. So again in this given industry what is happening कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें अगर बेंचमार्क कर रहे हैं कि अगर टू मार्केट हैं, दो दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर ए is charging 500 for a service and other is charging 1000, then I will prioritize 500 वाला। सो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट बेंचमार्किंग कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं करना, दूसरे वाले के पास नहीं तो हम चले जाएंगे। सो दिस इज अगेन चैलेंजिंग टास्क फॉर द पेट इंडस्ट्री वाले, ये डॉक्टर्स कंसल्टेशंस वाले पर्सन। सो अब वो क्या करें, नाउ दे आर प्रोफेशनल, दे आर इंटेलिजेंट, बट दे आर डूइंग कि ठीक है आप नहीं देना चाहते, हम ये प्राइस को 500 ही कर देंगे, बट they will do increase the prices in the medication, क्योंकि जो आएगा हमारे यहाँ पर वो मेडिसिन तो लेने जाएगा ही ना, तो मेडिसिन लेगा तो हम उससे कवर अप कर लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट challenges within the industry in our land. Guys, I will be discussing all the my opinions and the predicted question in the end only, reason being because अगर मैंने अभी तक की prediction बता दी, आप लोग हो सकता है कि ठीक है वो करके पूरा नहीं देखो या फिर अपना इंटरेस्ट जो है अपना खत्म कर दो। मेक श्योर टू लिसन दिस वीडियो टिल एंड because it is important, every single line is important, and in the main examination you might not have time to read all the requirements of specially pre-scene. So the information which you have already, you should spend time on that, so that you don't need to bother in the examination, especially for pre-sale, right? So next is about challenges within the industry in Ireland. Recruitment and retention of staff is becoming increasingly difficult. There is increasingly demand for veterinarians because of recent rise in the number of pets in Ireland. The fewer people are training as veterinarians because of the rising cost of training, and these two factors have led to nationwide shortage of veterinarians. Now, next is about long working hours. Driven by the shortage of staff, a sharp rise in pet ownership, and the client demand for a 24 hours, a 7 days a week, and 365 days a year service are increasingly problem across the industry. Challenging negotiation with pet owners who cannot afford the treatment are regularly occurrence. These two issues are having effect on the well-being of the staff across the industry. 5% of the staff are absent with work-related stress, and the staff retention is problematic, with average staff turnover at 30%. Now they are discussing about the challenges in our industry with this, relating to these doctors and these areas. So वो challenges क्या हैं? सबसे पहला challenge हमारे लिए क्या है? The biggest challenge is हमारे लिए कि देखो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द स्टाफ इज डिफिकल्ट। रीजन में क्योंकि हमारी जो है सबसे पहले तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये पेट के डॉक्टर्स हैं, इनको
इतनी रिजरस क्वालिफिकेशन करने के बाद, प्रोफेशनल्स हैं तो देखो इतना पढ़ने के बाद फिर जाके ये क्वालिफिकेशन मिलती है। सो अगेन द क्वालिफिकेशन इज डिफिकल्ट, सो दैट्स व्हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कम लोग ही क्वालिफाई होते हैं। एंड देन नेक्स्ट इशू इज दैट उनको रिटेन करना क्यों, अब वो भी हम देख लेते हैं। रीजन बीइंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दैट्स व्हाई देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ करने के लिए ओवरलोड तो इनके ऊपर ही पड़ेगा, ओवरलोड होगा तो दे विल फील टायर्ड एंड they will demand more money. So these issues will create the staff retention related problems. And again हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे कुछ पेट ऑनर्स हैं, दे वांट, अब देखो ये अपनी फीस हाई करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। और अगर क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेंगे तो क्लाइंट जो है दे विल बी डिप्रेस्ड। सो इसीलिए वहां से भी हमें चैलेंज आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सो दे आर अगेन गोना टू क्रिएट इशू फॉर अस। Next is client loyalty is low. There is a high level of competition on fees, quality of care, range of service offered, and opening hours between the clinics which are located close to each other. So अब हमारी इंडस्ट्री में क्लाइंट की लॉयलिटी बहुत ही कम है एंड कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। किसके रिगार्डिंगली, क्वालिटी की, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा ये जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर हमारी क्वालिटी ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा सर्विसेज ऑफर हो रहे हैं। एंड ओपनिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, बेसिकली जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होगा, ऑब्वियसली लोग जो है वहां पर जाना ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड अगेन जो नियर बाय क्लिनिक्स है वहां पर तो हमारी प्रायोरिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। So next is, although the competition has fallen to some extent over the past few years because of the industry consolidation, competition from each other challenge is increasingly as follow. Because we have discussed that कि yes की consolidation हो गया है, merger हो गया है, तो उसके कारण तो देखो competition जो है कम हुआ है। बट स्टिल देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ कंपटीशन, एक सोर्स नहीं है तो दूसरा है, तो वो क्या सोर्सेज है कंपटीशन के। So next is sources of competition and what kind of services are being provided. So first is about large budget pet superstore. Two superstore best for pet and pet fairs sell a wide range of pet food and pet accessory at lower price. So store staff who do not have vet training also offer general advice about the pets. Next is online pet medication provider. If the client obtain prescription from their veterinarian, they can buy prescription medication often at a significant discount the price charged by the pet vet organization from online pet medication provider. Next is about telehealth. Telehealth uses electronic communication and information technology to enable healthcare professionals and to provide healthcare service remotely at a distance. There are several pet vet telehealth providers in our land offering a service to their own clients or on behalf of other organizations. Some only offer remote service such as advice 24 by 7 by 365 via telephone, web chat or video consultation, while other provide a mix of both remote or face-to-face services. Now, what kind of different types of competition is now available in market? दो तरह की सुपर स्टोर है, बेस्ट फॉर पेट एंड पेट केयर, जो कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड स्टोर बेचता है, एक्सेसरी देता है, वो भी बहुत ही चीपर प्राइस में। एंड जो स्टोर स्टाफ वाले हैं वहां पर, उनको देखो वेट की ट्रेनिंग तो नहीं है, बट ये वो जर्नल एडवाइस दे सकते हैं। और हर बार देखो हमें मेनली बहुत हाई लेवल की एडवाइस नहीं चाहिए होती, कई बार हमारा जस्ट एक जर्नल एडवाइस भी कंसर्न होता है। सो जर्नल एडवाइस भी वो प्रोवाइड करते हैं सस्ते में, जो है जो फूड असेसरी ये सब भी प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कहाँ है, ऑनलाइन पेट मेडिकेशन प्रोवाइडर। अब ये क्या है कि मैंने क्लाइंट अपने उस डॉक्टर से, ये पेट वाले डॉक्टर से जो है मैंने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, बट मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो है मैं बाहर से ले रही हूँ, कहाँ पर, जहां पर मुझे सस्ते में मिल रही है ये मेडिसिन।
एंड ये ऑनलाइन वाले हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, देखो आप इसको नॉर्मल शॉपिंग से लिंक करके देखो, आप देखोगे कि कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, एंड आप उसी प्रोडक्ट को अगर आप Amazon वगैरह पे देखोगे, Amazon मिंत्रा इन एप्स पे देखोगे, तो हो सकता है आपको लगेगा कि यस द प्रोडक्ट इज फार चीपर। So yes, you will prefer to, if the time is not the constant key, because it will take mainly 4 to 5 working days. So if time is not constant, then you will prefer कि मैं सस्ते में ही बाहर से ही ले लूं. So again, this is the case कि ये बाहर से ऑनलाइन इन मेडिकेशन प्रोवाइडर से मेडिसिन लेना का एक न्यू चैलेंज है हमारे पास. नेक्स्ट इज टेली हेल्थ. टेली हेल्थ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है गाइस. रिमेंबर वी हैव चैप्टर्स रिगार्डिंगली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, CSR सॉफ्टवेयर. सो ये कस्टमर रिलेटेड सॉफ्टवेयर थे, उससे लिंक करना है. मैं सब कुछ एंड में बताऊंगी कि कौन कौन से एरियाज जो है लिंक हो रहे हैं. सो वो क्या है? अब आपको ऑनलाइन वाया स्काइप और जूम और ऐसी वाली ऐप से आपको जो है सर्विसेज ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं. हो सकता है आप रिमोट बेस पे ले रहे हो सकता है आप फेस टू फेस बेस पे ले रहे हो. सी यू गाइस माइट बी यूजिंग ऑनलाइन कोचिंग फॉर योर ACCA, सो ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड में भी. सो आप अगर ऑनलाइन, अगर आपको वही फैसिलिटी जो आपको बाहर जाके मिलनी थी, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको वेट नहीं करना, सो आपको क्या लगेगा कि आप ऑनलाइन प्रेफर करें, आपका टाइम सेव होगा. सो अगेन दैट इज गोना टू सेव योर लाइफ एंड योर टाइम इफ यू आर गेटिंग अ सर्विस विदाउट वेटिंग एनीवेयर. सो ये क्या है? एक और चैलेंज है हमारे लिए. नेक्स्ट इज pet healthcare has a large carbon footprint due to the waste production. ये अब आपको याद होना चाहिए. आपके पास environmental footprint, social footprint, economic footprint जैसे टॉपिक से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक था, right? Resource consumption and medicines usage. These have been recent negative press reports on human healthcare industry, which highlight the need to consider environmental impact of the industry, and therefore are fears within the pet vet service industry that will soon face similar negative publicity. Now they are discussing about कि जो ये कार्बन फुटप्रिंट रिलेटेड इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंगली इशू है, दैट ह्यूमन हेल्थ केयर में तो देखो कंसीडर हो गया है कि ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न जो है एक्टिव हो चुके हैं. अब हमें जो है कंसर्न है कि इस वाले इंडस्ट्री में भी ये कंसर्न जो है बहुत जल्दी इजीली एक्टिव हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. Technology is often recognized as one of the main challenges facing by the pet vet service industry. Technological advances in human healthcare, such as the use of artificial intelligence and machine learning, are expected to continue to filter down into more advanced medical, surgical, and diagnostic vet produces. Many developments have made the industry more capital intensive, but have led to increase in the quality of breadth of service which veterinarians can provide. Now they are discussing about the innovation and development. Now innovation regardingly आपके पास टॉपिक था, आपको बिग डेटा रिलेटेड कंसर्न भी माइंड में रखने हैं जब भी ये पढ़ना है. सो ये क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ह्यूमन हेल्थ केयर में हो चुकी है. जैसे कि हम AI देखते हैं और वो हो भी चुकी है. आप देखेंगे, नॉर्मल एक एग्जांपल लो, एप्पल वॉच में आपकी पल्स रेट ये सब कुछ आ जाती है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है ना. सो मशीन लर्निंग ये जो है आगे जो है हमारी इनसे क्या होने वाला है, मेरी मेडिकल इंडस्ट्री काफी और ज्यादा एडवांस होने वाली है. एंड अब हमें लग रहा है कि ये एडवांसमेंट जो है हमारी वाली इंडस्ट्री में भी देखो हो रही है, राइट? अब ऐसा कुछ डेवलपमेंट होती है, ऐसा कुछ एडवांसमेंट होती है जब भी टेक्नोलॉजी, तब हमें क्या नीड होती है? हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. सो यस कि इससे क्या होगा? क्वालिटी एंड ब्रेथ ऑफ सर्विस. अब देखो क्वालिटी भी बढ़ेगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी. Some of these new improved services are expensive to deliver, but technology has reduced some consultation time, meaning pet can be treated at a lower cost to clients. Now, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इन सबसे क्या ये क्या है? न्यू भी है
एक्सपेंसिव भी हैं। बट इससे क्या हो गया, देखो न्यू टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है, तो एक बार को तो ये एक्सपेंसिव होगा ही, बट उस एक्सपेंस से क्या होगा, हमारी जो है कॉस्ट ऑफ क्लाइंट जो है वो मेरी कम हो जाएगी। रीजन मीन क्योंकि वो टाइम कम लगेगा, ये सब बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। Now, technology has also favorable impact on business management software used by the industry and communication with the client. Digital technology is being increasingly used by the clients, close Belts group and huge group to market their service more effectively. और ये कौन थे, हमारे इंडस्ट्री के 52% शेयर होल्डिंग वाले टॉप 3 इंडस्ट्री वाले थे। अब जो टॉप 3 पे हैं, वो टॉप 3 पे क्यों है, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हमें टॉप पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सी। एक आपने देखा होगा, नोकिया वाली एग्जांपल मैंने कहीं पे शेयर की थी, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट। और स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट कब सिचुएशन में अराइज होता है, जब हम इंडस्ट्री के जो फेस है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीछे चल रही है और मार्केट में एडवांसमेंट जो है फास्ट चल रही है। सो अब ऐसा भी कुछ, अब देखो इसमें स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट जैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई यूज दिस वर्ड हियर, रीजन मीन बिकॉज एसीसीए का पेपर जो है, आपको जरूरी नहीं जो आप गेस वर्क कर रहे हो उस गेस वर्क के अराउंड ही होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट इन और भी लिंक्ड एरिया जो उससे नियर बाय एरिया जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट इज आई विल डिस्कस द मेन एरिया जो कि आप भी शायद गेस कर पा रहे होगे, बट दिस इज समथिंग विच वाज हिडन अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इज अबाउट इंडस्ट्री बॉडीज रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। Veterinarian must register with a chartered college of vet profession which regulates them, support the public interest and safeguard pets. The CCV Code of Conduct set out the professional responsibilities of veterinarians with respect to patient and client, pet owner and professional and public. Remember, हमें being a ACCA member, I told you that there are certain ethical requirements which I have to comply with. So वहां पर मैंने आपको बताया था, दैट इज वी हैव अ पाइकोप। पाइकोप निमोनिक याद करो, जो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए, राइट। सो यस, पाइकोप की रिक्वायरमेंट का आपको निमोनिक मैंने याद कराया था। एंड यस, अब जैसे हमारे ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स लगते हैं, इनके ऊपर भी प्रोफेशनल एथिक्स लगते हैं। अब the CCVP runs the standards for pet program. Most airlines pet vet organization have core level of SVP accreditation, but only 5% hold higher level. Higher level requires organization to show how they have achieved extra consideration which benefit vet team, patient, client, community of the environment. Many veterinarians and vet nurses are members of the Ireland Vet Union, which campaign for better workplace and condition across the industry. The AVU is increasingly concerned about the well-being of its members. Now, आपको याद होगा हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में पॉइंट्स पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू कि ये जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स या फिर स्टाफ रिटेंशन रिलेटेड इशू। वैसे उस टॉपिक का मैं अभी आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ, दैट टैलेंट मैनेजमेंट, सीआरएम रिलेटेड सॉफ्टवेयर वहां पर हो सकता है लिंक्ड हो जाए, एंड स्टाफ रिलेटेड कंसर्न जो है वहां पर, वर्क फोर्स रिलेटेड कंसर्न वहां पर लिंक्ड हो जाए। सो यस, नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंगली कि यस हमारे पास इनके रिगार्डिंगली यूनियन है, और जो कि यूनियन जो है इनके लिए कंसर्न कर रहे हैं। सो हो सकता है वो टॉपिक और इस टॉपिक से लिंक्ड करके आपको स्टेक होल्डर रिगार्डिंग भी कुछ इंफॉर्मेशन बन के आ जाए। सो इट इज हिडन, स्टेक होल्डर रिलेटेड क्वेश्चन इज हिडन, बट देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ ये गेस वर्क वाले एरियाज पे चले, एनी एरिया कुड बी हिडन इन द प्री सीन रिक्वायरमेंट। Next is organization within the pet vet service industry have several legal obligation. अब वो legal obligation क्या है? Compliance with the specific health and safety legislation to protect staff and the general public from, for example, pet inflicted injuries such as bites. Requirement to display a large notice informing clients that they can request a written prescription. This means that the clients does not need to buy medication at the client treating their pet, but can source it elsewhere, potentially more cheaper should they want to. And
provision of or pay another organization to provide on their behalf a 24/7 365 emergency service. Now there are हमारे ऊपर कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि हमें कंप्लाई करनी ही पड़ेंगी इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंगली। जैसे कि आपके पास गवर्नेंस वाला चैप्टर था, तो उस गवर्नेंस वाले चैप्टर, वैसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लिंक था, इससे नहीं है, बट आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी इस इंडस्ट्री में। अब लीगल कंप्लायंस रिलेटेड क्या आ सकता है, आपको हो सकता है रिस्क रिलेटेड इन क्वेश्चन आ जाए। देखो पीछे भी काफी रिस्क थे, राइट? सो वो रिस्क से लिंक करके हो सकता है एक ऐसा रिस्क आ जाए, लीगल रिलेटेड रिस्क बन के। सो देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी, राइट? सो आपको क्या करना है कि स्टाफ की सेफ्टी के रिगार्डिंगली कंसर्न करना है, कि ये नहीं कि पेट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो स्टाफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हीं कोई पेट ने बाइट कर दिया। फर्स्ट उनकी सेफ्टी रिगार्डिंगली कंसर्न, दूसरा ये कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, if they don't want to buy medicine from us, we can write it कि yes आप ये medicine बाहर से खरीद सकते हो सस्ते में। So considering the expensive industry, and seriously guys, the if you guys are having any pet, you might be aware about the food and the items which are required for their daily routine are very expensive. So once we have fish in our home, so fish थी हमारे घर में, तो they were very costly। उनका जो फूड होता है वो भी काफी कॉस्टली होता है, उनकी केयर करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो दे आर वेरी कॉस्टली। सो यस कि अगर आप हमारे से नहीं लेना चाहते तो वी कैन राइट इट डाउन कि आप बाहर से खरीद सकते हैं कहीं से सस्ते में। एंड अगर आप हम नहीं अवेलेबल है तो आप वो ट्रीटमेंट कहीं और से भी करा सकते हैं, बिकॉज पहले वो हमारे पेशेंट थे, मे बी we are not available and maybe their waiting time is large or maybe they are traveling to another country. So in the meantime कि अगर उनको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो कहीं और ले सकते हैं, वो लिख के नोट देने की हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। Next is PV Service Limited. Now, this information is with respect to our company. इससे पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जो मुझे लग रहा है, the requirements which I feel, I will be discussing them, and then the next part from the next page I will be discussing about the company related info. तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन जो अब तक हमने देखा, ये है इंडस्ट्री रिलेटेड। अब इंडस्ट्री रिलेटेड अब तक यहाँ पर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मैं यहाँ पर साइड पे लिखती जा रही हूँ, एंड यू कैन नोट इट डाउन। स्वॉट रिलेटेड आ सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, बाय बिकॉज you will be able to link that after reading the full question. Then apart from them, Porter's five forces, वो आपको दिख ही गया होगा, फाइव फोर्सेस मॉडल। देन एक जो है हमारे पास पेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, एंड मे बी जो है डायमंड भी हो सकता है कि इस इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस के लिए। देन उसके अलावा आपको जो है दिख रहा होगा कि कुछ रिस्क रिलेटेड कंसर्न्स हो सकते हैं यहाँ पर, एंड रिस्क इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स टेस्टेड इन एवरी एग्जाम। नाउ ये मार्केट स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंगली कुछ रेशियोज कैलकुलेशन जो है वो आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इशू आ सकता है, सस्टेनेबिलिटी का हमने पढ़ा है, सस्टेनेबिलिटी है। और हमारा जो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर थी, दैट ये इसकी इंफॉर्मेशन जो ये हमारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। सो बिग डेटा एंड जो हमारा यहाँ पर इशू एक आया था विद रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस की, ये इसकी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये कस्टमर रिटेंशन और टैलेंट मैनेजमेंट रिगार्डिंगली इशू आ सकता है। नाउ ये एक्सटर्नल कंपटीशन जो है, ये एक्सटर्नल, ये यहाँ से, ये जो सोर्स ऑफ कंपटीशन एंड सर्विस प्रोवाइडेड है, यहाँ से हमें बेस्ट फाइव जो है वो दिख रहा है। एंड environmental footprint which already I discussed with you guys. यहाँ पे so then this was all about अब तक का। Maybe I after the end, after reading all the points I will be discussing सारा ही, so that कि अगर कोई missing रह गया, so that we can cover that also. Now discussing about the वेट सर्विस इंडस्ट्री लिमिटेड, हमारी कंपनी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन,
PVS is the fifth largest pet vet organization in Ireland. It was established 32 years ago by Pater Perio. The most of its growth has been organic. Although under the current board, senior management, it has acquired a few small independent business which have been successfully integrated into the organization. See, अब तक हम जो है ऑर्गेनिकली चल रहे थे, बट कंडीशंस जो है अभी मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि हम ऑर्गेनिकली नहीं चल सकते, और ये हमें भी पता है, इसीलिए हमने जो है एक मूव लिया सो दैट कि हम इसको इन ऑर्गेनिक वे से चले. PVS runs 168 clients in south of Ireland. Clients vary in size, some having one or two veterans and other clients having 9 or 10. PVS head office, which is also based in the south of Ireland, provide finance, IT, purchasing, legal facilities, members and human resource functions. So yes कि हमारा जो है 168 क्लिनिक्स है इस एरिया में, राइट. वी आर हैविंग 168 क्लिनिक्स, और हर क्लिनिक जो है वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स. एंड यस, कहीं पे हमारे जो है 1 और 2 है डॉक्टर्स, पेट्स के डॉक्टर, और जहाँ पर 9 to 10 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. एंड हमारा जो हेड ऑफिस है वो IT, ये लीगल फैसिलिटीज, ये सारी सर्विसेज हमारे हेड ऑफिस से जो है होती हैं. Now, PVS has total of 2490 staff, 860 veterinarians, 925 vet nurse, and 705 support staff. The ratio of veterinarians to vet nurse to support staff is broadly in line with the industry average. So, जो हमने जिस भी तरह से ये नर्स वगैरह रखे हुए हैं, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिए हैं, उससे कम नहीं है. Now, strategic position. Although the price charged by some other pet vet organization are significantly lower than those by PVS, PVS has differentiated its service offering using these service features. These features have historically driven PVS growth and provide competitive advantage. So देखो, जो हमारी जो प्राइस चार्ज जो हमारा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन से कम है, बट हमारी सर्विस जो है कुछ डिफरेंट है. अब देखो, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, ठीक है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. सो ये सारी स्ट्रेटजीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है. So these features have historically driven PVS growth and provide competitive advantage. तो देखो, अगर हम कुछ डिफरेंट देते हैं तो उस डिफरेंट के बेस पे हम प्राइस ज्यादा भी चार्ज जो है कर सकते हैं. Now, service feature location. Over 85% of PVS clients are in town center. These locations have provided popular because of their convenience. They have car parking for those clients who prefer to drive and easy to access on foot using the public transportation. So देखो, हमारी लोकेशन क्या है, टाउन सेंटर में ही है. और ये लोकेशन क्यों पॉपुलर है, बिकॉज ये कन्वीनियंट है. अब ये हमारे स्पॉट से, अब यहाँ पर हमारे देखो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जब आता है ना, तो JWS मॉडल भी लग सकता है, स्वॉट पे भी आ सकते हैं. सो यस की कार पार्किंग जो है हमारी जो है कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए जो ड्राइव करके भी आएंगे या फिर जो बाय फीट भी आएंगे, उनके लिए भी हमारे लिए कन्वीनियंस है. Next is innovation. PBS has developed a wide range of innovation service in pet care, including therapy for pet experience, behavioral problems, and use of acupuncture for pain relief. It has won numerous awards in these innovations. See, अब तक क्या था, हम तो नॉर्मल ह्यूमंस का जो एक्यूप्रेशर जो है सुना था. अब क्या है कि यस की जो ये पेट ऑनर्स हैं अपने इनोवेशन सीरीज में इतना आगे बढ़ गए हैं कि ये थेरेपीज होती है उनकी बिहेवियरल से. आज ये खाना नहीं खा रहे, नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने पेट्स के लिए काफी ज्यादा दे आर वेरी मच कंसर्न दैट व्हाई आवर पेट इज नॉट हैविंग फूड. 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ अच्छे से खाया नहीं, तो वो तीसरे दिन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दैट चेक डॉक्टर व्हाई माय पेट इज नॉट हैविंग फूड. सो यस, उसके लिए बिहेवियर के लिए उनकी हो सकते हैं थेरेपीज हो. एंड within that they are they have introduced a एक्यूप्रेशर वाला जो है ऑप्शन की है कि ऐसा इस इनोवेशन के कारण हमें जो है अवार्ड भी मिला, और ये सब सकता है हमारी स्वॉट में कवर हुए, राइट. एंड नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस. PBS has historically had an excellent reputation on the quality of the services and patient care provided by knowledge and happy and engaged staff from welcoming and comfortable clients. It has prided itself on knowing its market and giving its client what they want.
सो सी हम जो है मार्केट में काफी ज्यादा इस पॉइंट पे फेमस हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी टू आवर क्लाइंट अकॉर्डिंग टू आवर बिकॉज वी आर इन द मार्केट फॉर लास्ट 32 years, राइट? सो इफ वी आर इन द मार्केट फॉर लास्ट 32 years, आवर स्टाफ मस्ट बी अवेयर अबाउट कि इसकी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है. सो इसके कारण ही हम जो है हमारा प्राइड ही यही है दैट वी नो व्हाट यू वांट एंड वी आर इन अ पोजीशन टू मेक आवर कस्टमर्स हैप्पी. Now, these features contribute to PVS winning an Ireland Wet Organization of the Year 11 times, last time being 6 years ago. 11 बार तो प्राइज मिला, बट ये पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि 6 साल पहले मिला, मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इनोवेशन अब के टाइम पे, बिकॉज हमारे पास देखो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट है. उसके रिगार्डिंगली कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं दिख रही है क्वेश्चन में कि इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम कैसे डील कर रहे हैं. However, as the industry has consolidated and competition has increased, PVS revenue has started to decline. Market share has dropped every year since 2010. देखो इंडस्ट्री बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट फिर भी हमारा रेवेन्यू क्यों डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे का देखो हमें रीजनिंग तो ढूंढनी ही पड़ेगी. In the last couple of years, several competitors have been aggressively undercutting PVS price. Although they are offering very different service culture to PVS, they have been taking market share. अब कुछ सालों में क्या हुआ, कंपटीशन जो है बढ़ गया. कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हमें जो है अपना प्राइस कट करना पड़ गया. ठीक है, सर्विस दे वर ऑफरिंग वाज डिफरेंट, बट ऑल्दो विद इन दैट डिफरेंट सर्विस ऑल्सो हमें जो है अपना प्राइस जो है उसमें कट करना पड़ गया. रीजन मीन कि ये सब चीजों के कारण. Next is about ownership. TP retired recently and he no longer has any active involvement. जो हमारे फाउंडर्स में से थे वो एक पर्सन है जो कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है. हो सकता है दैट कुड बी द रीजन. अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से अब आपको पता चलेगा दैट इन द मैनेजमेंट ऑफ पीवीएस बट ही स्टिल्स ऑन 11.11 शेयर्स. उसके पास जो है हमारी कंपनी के शेयर्स हैं. नाउ the board of PVS has 8 executive directors, including the executive chairman and a recently appointed chief executive officer. Each of these executive owners owns 11.11 shares. The PVS is unlisted and it's all equity finance. अब इक्विटी फाइनेंस बिजनेस, और वहां पर हमारा क्या था, हमारी इंडस्ट्री में क्या है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. एक इक्विटी फाइनेंस बिजनेस जो होता है उसके लिए कैपिटल रिलेटेड सिनारियो होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ भी हम कर रहे हैं. अब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इक्विटी फाइनेंस में चल रहे हैं, तो ग्रोथ हमारी एज कंपेयर टू अदर उसके कंपैरेटिवली स्लो ही होगी, क्योंकि हम अपने ही फाइनेंस के ऊपर लिमिटेड हैं. नाउ कमिंग अहेड, बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो हमारे पास क्या है, एज वेल एज 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देर इज वन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. सी, वी आर नॉट अ लिस्टेड कंपनीज, वी आर अनलिस्टेड कंपनी, राइट? तो उस वाले सिनेरियो में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव वाला इशू इतना होना नहीं चाहिए. बट स्टिल कंसीडरिंग आर इंडस्ट्री, है ना, हमें जो है बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हो सकता है ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट करना चाह रहे हैं, कैसी हमारे सामने इंफॉर्मेशन आती है. बट with the current information what I feel कि लिस्टिंग की एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट नीड नहीं है. बट अब जब आ गया बोर्ड, बोर्ड की रिक्वायरमेंट, सेपरेट बोर्ड कमेटी हो सकता है उसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन हो, सेपरेट बोर्ड की बेनिफिट्स उसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन हो. नाउ यू विल से मैम यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. यस, यू हैव टू कवर एवरीथिंग. That is the main reason I started with this information, that you can't just rely only on pre-scene. You have to use your own mind along with the guesswork. Now 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड वन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में हमारे पास सीईओ है एंड वन एनईडी है. सीईओ के अलावा हमारे पास और क्या है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे हमारे पास अदर पर्सन्स हैं. Now, as the non-listed company's director made the decision not to have an audit, nomination and remuneration committee. Now they have, used the word of these committees. Maybe somehow question में कुछ ऐसा सिनेरियो हमें दिख जाए जिसमें इससे रिगार्डिंगली प्रॉब्लम हो, और हमने ये बताना हो कि what are the benefits of having these committees. ये अब पता चलेगा इंफॉर्मेशन के बेस पे, राइट?
So these are internal audit function which report to the chief finance officer. अब चीफ फाइनेंस ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग उसको हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में देयर कुड बी अ सिनेरियो जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लमेटिक इंफॉर्मेशन मिल जाए. Now, Chief Operating Officer has overall responsibility for daily day-to-day operation of PBS client. Uh, Individual clients are managed by client manager. Up to 10 client manager report to each of the PBS senior veteran, who in turn report to one of the 5 district manager. The district manager report to CEO, but also work with the other executive, for example, HR or legal issue arising on the clinics which they are responsible for. सो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये इसके अलावा हमारा सीईओ जो है उसकी डे टू डे ऑपरेशंस की उसकी ड्यूटी है. इंडिविजुअल क्लाइंट जो है उनको मैनेज करने वाला कौन है? क्लाइंट मैनेजर. सो एक चेन ऑफ कमांड है. सो अप टू 10 क्लिनिक मैनेजर जो है सीनियर वेट को जो है वेटेरियन को जो है रिपोर्ट करते हैं, एंड देन वो आगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करते हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है? आगे सीईओ को एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स को जो है रिपोर्ट बैक करता है. सो ये एक चेन है जो कि इन्होंने हमें शो की हुई है. So up next is with respect to other management persons की responsibility. Other members area responsibilities are as follows. So now discussing there, हमारे पास क्या है? CFO के क्या काम है? Finance, purchasing, internal audit function, and this is somehow predictable with the name. Next is Chief Medical Officer. वो क्या है? Quality, patient care, medical treatment provided, उसका ये सारा काम है. Then next is हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर. ह्यूमन रिसोर्स दैट मीन्स की टैलेंट मैनेजमेंट, जो हमारा स्टाफ है हमारे लिए काम करता है, उनका कंपनसेशन, उनकी हेल्थ, उनके कंसर्न को डील करना इज द मेन टास्क ऑफ दिस पर्सन. नाउ legal director, minimizing PV's legal risk by advising the other directors and senior management or other major legal and regulatory issues on PVS may encounter. So देखो हम किस इंडस्ट्री में है जहां पर हमारे पास लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू द हेल्थ केयर एंड सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न, दो इट इज रिलेटेड टू द पेट्स, बट यस पेट्स की भी हेल्थ जो है आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है. सो उस इंडस्ट्री में इनके ऊपर भी काफी ज्यादा लीगल कंप्लायंस जो है लग सकते हैं. Now, Business Development Director, increasingly PBS revenue by identifying and developing new business opportunities as well as expanding the business presence. So ये क्या कर रहे हैं? इन सब एरियाज में डील कर रहे हैं. Now, most decision making is centralized. For example, on pricing, the rollout of the new service and salary level, district managers, senior veterinarians are responsible for generating the growth of the clinics under their management within the parameters set by the board for using the resource efficiency and effectiveness. So इसके बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई? रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रिलेटेड कि इस डिसीजन मेकिंग कहाँ है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में है, डिसेंट्रलाइज में नहीं है. एंड देन we have information system and use of technology. हमारी इंडस्ट्री में हम कैसे, हमारी कंपनी में आईटी कैसे चल रही है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज किया जा रहा है, उसके बारे में we have information. So business management software used by PBS to record client and patient information and schedule consultation is an off-the-shelf software which has been used by PBS for 8 years. See, there are two types of software, off-the-shelf and customized. Customized जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट वो स्पेसिफिक टू क्लाइंट होता है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है. अब जो ये bespoke होता है, जो ऑफ द शेल्फ होता है, ये रेडीमेड होता है. चीप तो होता है, बट अगेन इसके क्या डिसएडवांटेजेस है चीप होने के कारण? कि यस ये हो सकता है क्लाइंट स्पेसिफिक ना हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ना हो. Now, PB's website includes search functionality which enables the prospective clients to find the clinic near them. The basic information about the service offered by each clinic is included, as well as the telephone contact detail for booking consultation. The website also details the executive teams and provides some limited information on PBS, its mission and values. So एक हमारी बेसिक सी वेबसाइट है जिसमें हमारे क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट हमारी लोकेशन जो है देख सकता है, कहाँ पर है हमारा ऑफिस, हमारा फोन नंबर है, अगर कोई बुकिंग वगैरह करानी है किसी क्लाइंट ने तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है कि यस कि चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा मिशन क्या है, ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है, बहुत ज्यादा अपडेटेड हमारी वेबसाइट नहीं है. नेक्स्ट इज, अब ये देखो एक आपको इस वाले से आपको पता चल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेबसाइट, उससे लिंक्ड भी आ सकता है.
Now, although emails are used within the PBS with supplier, there is no facility for client communication with the clients via emails, and PBS has only very limited social media presence. अब social media presence आज का टाइम तो देखो social media का टाइम है, and हमारी social media presence नहीं है. And second fact is that clients don't have option to connect with us. And हमने ये टॉपिक भी करा था कि यस कि एक टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, और आपको याद होगा कि इंडिविजुअल 6 आईज, इंडिविजुअल इंटरेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन, ये ऑनलाइन बिजनेस के कुछ पॉइंट्स हैं. तो अब अगर हमारा जो है ड्यूअल साइड नहीं होगा तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा कि क्लाइंट को अगर कोई इशू है तो वो हमारे पास डायरेक्टली जो है रिपोर्ट बैक नहीं कर सकता. उसको कोई भी प्रॉब्लम है एंड उसको कोई भी इशू है वो कंसर्न नहीं रेज कर पाएगा, एंड अपना फीडबैक नहीं दे पाएगा हमारी वेबसाइट पे. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट, despite its past history of innovation, PBS is yet to make a major investment in technology advancement in pet care. ठीक है, हमारी इनोवेशन है, बट पेट केयर इंडस्ट्री में हमने एडवांसमेंट करने की नीड है. अब वो नीड है, दैट मीन्स देयर कुड बी ए सिचुएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट. और देखो इसीलिए हमारा रेवेन्यू भी कम हो रहा है, मार्केट शेयर भी डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज वी आर लैकिंग बिहाइंड इन दिस एरिया. Now, next is services. The size of the client determine the client services offered. PBS largest clinic can carry out a wider range of diagnostics and surgical procedure than smaller one. If a smaller clinic cannot carry out procedure or test, the patient is referred to the largest PBS clinic in the same area. Although historically PBS developed and introduced an innovation range of pet care services, there have been very little innovation in recent year, and in the past 2 years there have not been any new services offered. तो देखो recently हम कोई new service कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी स्पेशली नहीं दे रहे हैं. जो साइज क्लिनिक में, क्लिनिक का साइज जो डिपेंड करता है हमारी सर्विसेज के ऊपर. हमारे जो लार्जर क्लाइंट हैं वो बहुत सारी वहां पर ज्यादा सर्विसेज मिलती है लार्जर एरिया में, एंड स्मॉलर वन वाले में कम क्लाइंट्स आते हैं, वहां पर हमारी कम सर्विसेज मिलती हैं. सारे प्रोसीजर और टेस्ट एक ही उसमें नहीं हो सकते. अगर स्मॉल वाले एरियाज में अगर हमें कोई इशू लग रहा है कि इस कोई क्लाइंट को कुछ सर्विस लेनी है, तो हम उसको रेफर कर देते हैं कि आप हमारी दूसरी वाली ब्रांच जहां पर ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पर जाके सर्विस जो है आप ले सकते हो. PBS clinics are open from 8:30 to 5:30. See, रिमेम्बर द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन कि हमारी जो है सर्विसेज जो है रिक्वायरमेंट क्या थी, आफ्टर ऑफिस टाइमिंग या फिर वीकेंड्स पे. हम क्या दे रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे दे रहे हैं और ऑफिस टाइमिंग में दे रहे हैं. क्या ये सही है? इट्स वेटेरियन प्रोवाइड इमरजेंसी कवर आउटसाइडर दीज ओपनिंग और ऑन द रोटेशनल बेसिस. हमारे जो है इन्हीं आवर्स में आ रहे हैं, बट रोटेशनल आवर्स में आ रहे हैं, ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं. बट दिस इज नॉट राइट अप्रोच. Now, to attract and retain client in an increasingly competitive market, PBS has stated that PBS Healthcare Plan 2 years ago, the plan provide annual vaccination and other routine treatment for pets for a monthly fees. So, payable by direct debit. Client who join the plan, known as member, can also plan for the cost of expenditure treatment and procedures at a later date. Although this has an impact on previous cash flow, the retention rate of the plan member as clients is higher than that the clients who are not in the plan member. So अब देखो हमने एक वे ढूंढा that how we can retain the clients. कंपटीशन मार्केट में हमने एक हेल्थ केयर प्लान 2 सालों का लॉन्च कर दिया, एंड उसमें क्या है, हम एनुअल वैक्सीनेशन देंगे और भी सर्विसेज देंगे, मंथली फीस चार्ज करते हो उस बेस पे. एंड क्लाइंट जो है उस प्लान में जो ज्वाइन करेगा उनको क्या बोलेंगे, मेंबर. जैसे हमारे क्लब्स के मेंबर होते हैं, ये भी एक किस्म के हमारे मेंबर्स हो गए, उनको हम बोलेंगे मेंबर्स. एंड जो क्लाइंट्स इस प्लान को ज्वाइन करते हैं उनको क्या होता है, बाद में पैसे पे करेंगे, प्रोसीजर पहले ले लो और पे बाद में करो, पे एज यूज, वो वाला मेथड हो गया. बट जो क्लाइंट्स जो है इसको ऑप्ट करेंगे वो ज्यादा है, वो हमारी उनकी काउंटिंग जो है बढ़ रही है. बट दैट इज गोना टू क्रिएट अ कैश फ्लो रिलेटेड इशू. पे बाद में कर रहे हैं तो दिस इज गोना टू इम्पैक्ट माई रेवेन्यू अगेन. So PBS has relied on the visibility of its own town location and word of mouth recommendation to attract new customer. Its marketing activities have been limited to poster in clinics and advertisement in the local newspaper. See, हमने already देख लिया था कि there is no social media presence
एंड दे आर सेइंग कि इसकी जैसे सपोज करो इफ आई वांट मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैं सिर्फ लोकली कर रही हूँ, लोकल मार्केट में कर रही हूँ, एंड वर्ड ऑफ माउथ से कि मेरे से कोई ट्रीटमेंट लेके गया, उसने नेक्स्ट बोला कि यस आप इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए इन डॉक्टर के पास चले जाना। स्पेसिफिकली कोई अच्छा कोई और वे आउट नहीं है, बस रिकमेंडेशन वर्ड ऑफ माउथ के बेस पे ही हमारी चल रही है अब तक। Now, next is about suppliers. Previous source of all medication and suppliers need for pet treatment from Ireland Vet Suppliers Limited, the largest vet wholesaler in Ireland. It has long established relationship with the supplier, and because purchasing is carried out centrally by PVS head office based on information from individual clinic, PVS receive good bulk purchase discount. So देखो हमारे जो सारी मेडिकेशन है वो हम कहाँ से लिखते हैं, एक आयरलैंड वेट सप्लायर लिमिटेड है वहां से लिखते हैं, वो कौन है, लार्जेस्ट वेट होलसेलर है, वहां से हम मेडिसिन लेते हैं। अब इनका हमारे साथ देखो लॉन्ग रिलेशनशिप है, और हम सेंट्रल सारा जो है इन्हीं से परचेज करते हैं, एंड सारा बल्क पे परचेज करने से हमें बल्क डिस्काउंट भी जो है हमें इनसे मिलता है। देन देन Next is pet food and accessories are sourced from a number of pet food suppliers, including Glows Group, which owns a number of pet food brands and purchased directly by the individual clients. अब जो pet food है और accessory है वो different different suppliers से हम लेते हैं, और उनमें से एक Glows Group भी है जो कि हमारा top 1 में था। And नेक्स्ट इज अबाउट रिस्क। सी ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू कि रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। PVS maintain a risk register and its risk management program. It is the responsibility of internal audit function. अब आपको जो है एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। द रिस्क कवर्ड ऑन द रिस्क रजिस्टर आर कॉमन टू मोस्ट पेट वेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिस्क रजिस्टर इज शोन बिलो। अब देखो आपको कंटेंट ऑफ रिस्क रजिस्टर जो है वो भी क्लियर होने चाहिए। एंड रिस्क में रिस्क, अब जब रिस्क है तो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक, ताना मॉडल, ये सब भी कवर हो सकता है। जब रिस्क आ गया तो जरूरी नहीं कि उससे रिलेटेड हो। एंड हाउ विल बी यू विल बी मिटिगेटिंग दैट रिस्क। अब वो रिस्क देखो हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क भी आ सकता है कि यस कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं। सो यस देयर इज अगेन रिस्क जो है, रिस्क रिलेटेड इशू आएगा, तारा भी आ सकता है। सो आई हैव रिटन इट डाउन हियर। नाउ रिस्क हमारे पास क्या है, देखो कंपटीशन का नेशनल भी आ रहा है, रीजनल, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली ऑन प्राइस वॉर के बेस पे हमारे पास रिस्क चल रहा है। Next risk is with respect to key employees, failure to attract and retain staff, particularly vet, due to the shortage in the market. So ये employees का ये हम already discuss कर चुके हैं कि वहां पर ये issues हैं। अब उन्हीं issues को risk की form में दिया हुआ है, that means there could be the probability कि इन situation पे risk related बन जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड की यस कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रेगुलेशंस को मीट ना कर पाए, एंड एडवर्स पब्लिसिटी, दैट मींस मिस्टेक्स हम नहीं कर पाए, डायग्नोस नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली हमारे बारे में मार्केट में देयर वुड बी adverse information that this institution and this doctor, this pet doctor is not finding this organization is not able to treat us. Now नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड समरी। अब देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई तो रेशियो रिलेटेड आ जाएगा। अब रेवेन्यू, सेटिस्फेक्शन, स्टाफ टर्नओवर, न्यू क्लाइंट्स, इससे मुझे क्या दिख रहा है, बैलेंस स्कोर कार्ड भी दिख रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन, राइट। सो रेवेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, देखो रेवेन्यू जो है मेरा अब जो है देख रहे हैं हम कम होता होता जा रहा है, एंड एंड देन उसके बाद हमारा एक बार थोड़ा सा बड़ा था फिर कम हो गया, एंड देन अगेन सेटिस्फेक्शन स्कोर भी हमारा कम हो रहा है, स्टाफ टर्नओवर मेरा बढ़ता जा रहा है, एंड न्यू क्लाइंट जो है हमारे बढ़ रहे हैं पर मीन्स कम हो रहे हैं, सॉरी, सो इट इज अगेन डिक्लाइनिंग। सो न्यू क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, सो बीसीजी मैट्रिक्स, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये कुछ इश्यूज जो है हमारे अराइज हो सकते हैं। नाउ the last is information about the website extract. सो वेबसाइट एक्सट्रैक्ट, अब वेबसाइट के बारे में क्या बोला गया है, आर मिशन टू इंश्योर दैट आर पेशेंट हैव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। पेशेंट कौन है, हमारे पेट्स, ये नहीं भूलना है।
आर विजन टू बी वेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव आर क्लाइंट्स व्हाट दे वांट। अब देखो 3 E's भी घूम फिर के कहीं से आ सकता है, देयर कुड बी सिचुएशन। रिटेन आर स्टाफ सो दैट वी डिलीवर द बेस्ट क्लाइंट सर्विसेज। हमारा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हम अपने स्टाफ को स्टाफ रिटेंशन बढ़ाएं, एंड be leaders in vet care and client services and deliver profit via differentiation. So differentiation पहले भी एक बार यूज हुआ था, तो ये differentiation strategy, cost, leadership strategy, there could be information relating to that, आपको ये ढूंढना हो सकता है। Next is other values. So teamwork and collaboration, we help and support each other so we can help and support our clients and patient. ये हमारी core values हैं हमारी website पे। Honesty and integrity, that we are transparent, open and stand up of what we believe it's right. जो हमें सही लगता है, जैसा treatment हमें सही लगता है, वो हम provide करते हैं। And next is quality and care. We provide a first-class innovative service by understanding the fulfilling the individual need of our stakeholders. अब देखो stakeholder word use हो गया है यहाँ पर। So stakeholders कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, मुझे ये concern में रखना है। एंड उनको stakeholders के accordingly stakeholders matrix भी है हमारे पास, ठीक है, Menlo matrix. Next is career opportunities at PVS. Are you looking for a fulfilling career with organization which aim to be the vet organization of choice for clients and staff? We empower you to provide the highest level of service to our clients and staff, offer a family atmosphere, flexible working and marking leading strategy and generous staff discounts. We have a clear strategy in place to ensure that the fair play and fair treatment and to stop discrimination and encourage diversity. अब यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन लग रही है? देखो पीछे भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द client retention, the limited availability of staff. So maybe this advertisement relate to that. We are trying to find out the staff members, relating to our position, but that is the case कि हमें नहीं मिल रहा। Bottom, we have information that we are proud holders of standards for pet program accreditation. जो वहां पर पीछे accreditation program के बारे में बात हुई थी, that means we are having that scenario. अब this is whole information regarding the pre-scene. Now, guys, link with the the pet industry. What kind of food they need, what kind of competition could arise, recession situation में क्या होगा. So ऐसे कुछ factors आपको mind में रखने हैं. Apart from that, ये कुछ गेस वर्क है दैट जो अभी तक स्पॉट हो गया, पेस्ट हो गया, डायमंड हो गया, रिस्क हो गए एंड रिस्क रिलेटेड स्ट्रेटजीज हो गए। हमारे बिजनेस पे हमारे पास क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क रिगार्डिंगली टारा मॉडल हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, 6 I's रिलेटेड हो गया, and maybe the situation could be relating to big data, relating to non-compliance of the situations, governance related requirement, maybe technological related situations, technological advancements. So these are the certain areas which according to me could be tested in this balance scorecard हो गया, and ये because balance scorecard financial and non-financial informations है. So these are certain basic areas जो मुझे लगता है यहाँ पर आ सकते हैं, although they have provided us information regarding the executive and non-executive director. So ये बहुत ज्यादा hidden area है, and hidden areas में मैंने आपसे और भी discuss किया था that जो हमारे hidden areas में 2 और point थे, and उसके अलावा अब ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके होने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उनसे भी लिंक कर सकता है, हमारा इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट शेयर जो है उससे लिंक कर सकता है, स्टेक होल्डर्स जो मैपिंग मॉडल है दैट इज अगेन हिडन, 1-2 बार स्टेक होल्डर्स वर्ड यूज हुआ है, सो दैट कुड बी टेस्टेड. नाउ moving towards the approach, guys, we have now almost 8 to 9 days, and if I give you the best advice, even though you are working, maybe most of the students who are appearing for professional level examination, they are working and they struggle to manage, and in the last few days they have maybe they have off, or maybe they are focusing. So if you are not prepared, and if you think that you are not fully prepared, what approach you can follow? So again,
my tip is just first of all focus on the past papers which are available on CBE practice platform, and again my Instagram account also. So you can use these past papers and my Insta, right? ACCA with Knowledge Planet. Then next is again past paper हो गया जो कि आप CBE पे, और CBE जो है एटलीस्ट 3 मॉक्स तो देखो करो ही करो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी वाले जो मॉक्स हैं उनको आपने रीड करना है, सो दैट एंड उसके अलावा जिस जिसके पास कैपलान और बीपीपी की एग्जामिनेशन किट्स हैं, वी हैव पास्ट पेपर्स बिहाइंड बीपीपी एंड कैपलान, 2-3 बीपीपी के पीछे हैं एंड कैपलान के पीछे हैं। सो शॉर्ट शॉर्ट स्पेसिमेन पास्ट पेपर बीपीपी क्वेश्चंस मिला के अराउंड 15 to 16 पेपर्स हैं। सो दो दो जो है दिन के रोज करने से आपका जो है इन द मीन टाइम हो जाएगा। 2 के बदले 3 करो, एक एक अटेम्प्ट करो एंड 2 रीड करो। एंड आफ्टर दैट इस प्री सीन को भी पढ़ो, एंड जो कुछ ये एरियाज है इनका तो थ्योरी पढ़ना ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एरियाज की भी थ्योरी हमें जरूर पढ़नी है। वी कांट इग्नोर अदर एरियाज गाइस, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, वी कांट इग्नोर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट make sure your time management, and in paper you have to write according to the एग्जामिनेशन पैटर्न। एक क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना है हमें, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। एंड एसपीएल के पेपर में प्रोफेशनल मार्क्स हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस, 20 मार्क्स एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स। सो मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल मार्क्स को कंसीडर करें। So this was my top recommendation, and in case you need any other advice, not only related to SBL, any other paper regarding ACCA related curriculum, you can directly contact me. Thank you guys, and wish you all the very best, and revise this pre-scene before the examination as well. Good luck, guys.